اور یہ جو بچے اس وقت میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بچے نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی یہ بول سکتے ہیں۔ اپنا درد، اپنا دکھ ان پر کیا گزرتی ہے یہ کسی کو نہیں بول سکتے ہیں۔ لیکن عجیب داستان ہے یہاں کے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی کہ اس اسکول میں چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ ٹیچرز جو ہیں وہ گزشتہ کئی سالوں سے تنخواہوں سے محروم ہیں، مینجمنٹ ہے ہی نہیں۔ آخرکار اس اسکول کا ہوگا تو ہوگا کیا؟ ان بچوں کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے؟ آپ خود دیکھ سکتے ہیں ناظرین محترم کہ یہ بچے، ان کے اشاروں سے ہی ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ان کا درد کیا ہے۔ ناظرین، اس خاموش مزاجی میں درد ہے، اس خاموش مزاجی میں ایک قیامت ہے، کیونکہ یہ بچے، معصوم بچے، آخرکار اگر اس ویلفیئر سٹیٹ میں ان کا سہارا کوئی نہیں ہے تو آج ان کی آواز اٹھانا آپ سب کا فرض ہے۔ پرناوان نہ سہ مطلب تیوت حساب مطلب کہیں بہت دپان مطلب بہ نیرہا سکول مز مطلب یہ انسان گژھان واللہ دربدار خدایس ان بچوں کی آواز، حرکات و سکنات آپ کے جگر کو چیر دے گا۔ یہ بچے ابھینندن ہوم ہائر سیکنڈری انسٹیٹیوٹ سلینا سری نگر میں زیر تعلیم ہیں۔ مختلف ضلعوں سے آئے یہ جسمانی طور معذور بچے یہاں پڑھائی کرنے کی غرض سے آئے تھے، مگر بدقسمتی کا عالم یہ ہے جب سے یہ ادارہ محکمہ سوشل ویلفیئر کے تحت لیا گیا تب سے یہاں کوئی بنیادی سہولیات موجود نہیں۔ استاد تنخواہ نہ ہونے سے پریشان، صاف صفائی کے انتظام کا نام و نشان نہیں، ادارے سے جڑی گاڑیوں میں زنگ لگا ہوا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی، جب ہم اپنے بچوں کو صبح اسکول روانہ کرتے ہیں تو ہم ہر ایک چیز کا دھیان رکھتے ہیں، مگر یہ بچے جسمانی طور معذور ہیں۔ زیادہ تر بچے غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی ان کے بارے میں سوچنے والا نہیں، کوئی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں۔ دیکھیے کشمیر کراؤن کی یہ خاص رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جس جگہ پہ میں اس وقت موجود ہوں اس جگہ کا نام ابھینندن ہوم ہے۔ یہ اسکول ان بچوں کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا۔ ایک ٹرسٹ اس اسکول کا نظام، اس اسکول کی جو پڑھائی ہے اس کا ذمہ لیا تھا اس ٹرسٹ نے، لیکن اس کے بعد سرکار نے یہ مناسب جانا کہ اس اسکول کی رکھوالی اور اس اسکول کا نظام جو ہے وہ سرکار خود چلائے گی۔ اور یہ جو بچے اس وقت میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بچے نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی یہ بول سکتے ہیں۔ اپنا درد، اپنا دکھ ان پر کیا گزرتی ہے یہ کسی کو نہیں بول سکتے ہیں، سوائے ان کے اشارے اور ان کی تھر تھراتی زبان جو ہے وہ صرف ان کے والدین سمجھ سکتے ہیں اس دنیا میں، اور اس دنیا میں کوئی ان کی فریاد، ان کی پکار کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ بہرحال ابھینندن ہوم کو بعد میں سرکار نے گزشتہ کئی سالوں سے لگاتار سرکار دعوے کر رہی ہے کہ ان بچوں کا خیال، ان بچوں کی رکھوالی سرکار کر رہی ہے، لیکن یہ عجیب داستان ہے آج کہ یہ جو میرے پیچھے سکول ہے ابھینندن ہوم، انہی بچوں کے لیے اس سکول کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ ذمہ دیا گیا تھا محکمہ فلاح و بہبود سوشل ویلفیئر کو، یعنی سماجی بہبود کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کو دیا گیا تھا کہ آپ ان بچوں کا خیال رکھیں۔ پرائم منسٹر نریندر مودی کا اعلان ہے کہ ان بچوں کے لیے خصوصی طور پر وہ خود جاتے ہیں، لیکن مودی جی آج آپ کو یہ دیکھنا ہوگا، آج ڈائریکٹلی شہر سری نگر کے اس مرکزی سکول سے جو انہی بچوں کے لیے آپ کو میں دکھانا بھی چاہوں گا، مودی جی آپ دیکھ بھی لیجئے کہ یہ بچے
कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, किसी को अपना दर्द समझा नहीं सकते। लेकिन अजीब दास्तां है यहाँ के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की कि इस स्कूल में चलाने वाला कोई नहीं है। टीचर्स जो हैं वो गुज़िश्ता कई सालों से तनख्वाहों से महरूम हैं, मैनेजमेंट है ही नहीं। आखिरकार इस स्कूल का होगा तो होगा क्या? इन बच्चों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? आप खुद देख सकते हैं नाज़रीन मोहतरम कि ये बच्चे, इनके इशारों से ही हमें समझना होगा कि इनका दर्द क्या है, क्या दर्द है। नाजरीन, इस खामोश मिजाजी में दर्द है, इस खामोश मिजाजी में एक क़यामत है, क्योंकि ये बच्चे, मासूम बच्चे, आखिरकार अगर इस वेलफेयर स्टेट में इनका सहारा कोई नहीं है तो आज इनकी आवाज़ उठाना आप सबका फ़र्ज़ है। सोशल वेलफेयर महकमे को मेरे ख़्याल में इस स्टोरी को देखने के बाद उनको सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर इस स्कूल का मैनेजमेंट ठीक करना होगा। ये देखिए, ये समझ नहीं सकते, ये बोल नहीं सकते, ये कह नहीं सकते कि आखिरकार अगर ये स्कूल जाने के लिए इतनी कोशिशें कर रहे हैं इनके पेरेंट्स, लेकिन इनका इस वक्त खुदा हाफिज है। यहाँ पे टीचर्स की तनख्वाहें नहीं है। इन बच्चों से अब कहा जा रहा है कि आप ही फीस दे के टीचर्स की तनख्वाहें दें। टीचर्स की भी कोई ख़ता नहीं है, क्योंकि टीचर्स गुज़श्ता 1 साल से तनख्वाहों से महरूम हैं, 3 साल से। तो क्या छू ये क्राफ्टस मज ये अबिदानंदा होम अबिदानंदा होमस मज क्राफ्टस मज यानी जन अमो न्यू 2018 मज न्यू सोशल वेलफेयर वालों स्कूल दोप हसा चलावो हैंडीकैप्टन स्कूल पाने नॉर्मल कड़ुक तुम नबर अमो कर कम जनाबन पत बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल कड़न नबर पत पुरुसुक न दित ग्रांट एड कह न दित कह चीज बिल्कुल टोटल न कहें पत कर्म तत पे इथे पे रेफरेंस चलान अमो दोप टीचर अस दी तो ती तनख्वाह ये पन पे निवान तनख्वाह दिवान सह कहें बिल्कुल ना कहें अस ग्रेजुएटी पेजुएटी सोरे खता कहें तम इथे कन मुफ्त चलान बिल्कुल बिल्कुल तम वो करान नमन बच नमन वनान दियो तोत गाड़ी फीस ना हेको इत पे ये कहें तोत दियो गाड़ी किराय हसा पर्नो पद अगर ना तुम दियो तेल कित पे पर्नोक क्या करो तो ऐ जानस कर अमन कि मतलब कि योर गई लैंड अत ये ग्रांट एड तारान मतलब वेलफेयर वाले कुन ये ब्रो तारान 30 सास रुपये ये कोर तमो कैच तमन कुन तो ऐ जानस कर बच्चन ये प्रॉब्लम बच्चन प्रॉब्लम पर्न प्रॉब्लम बाकी चीज बाकी ये वक्त टीचर न टाइमस आए टीचर तम दपान ऐसे यमो तो यमो का तो ऐसे करो क्या बिल्कुल 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 टीचर कुछ पेरेंट्स के साथ मैं बात करना चाहूँगा ये पेरेंट ये तुम वनो मे रशीद साहब वरियाह दो पे वोतु तुम फोन करान मे तुहद दुख कह बोजान डायरेक्टर साहबस नश गई तुम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हर कह आखिरकार मसल क्या मसल बच्चन यह 2018 मज निमो टेक ओवर कोर्मुत सोशल वेलफेयर स्कूल मगर 2018 ब्रो बिल्कुल असल नॉर्मल पे चलान स्कूल क्या तम सात चलान मतलब तम ब्रो चलान ठीक तम पे गई प्रॉब्लम ये कि मतलब ये सोशल वेलफेयर स्कूल न्यू क्या तम ब्रो पे थोड़ा बहुत फीस ते नॉर्मल बच्चे पान तो नॉर्मल पान कि तमो सम बच्चे पकान बेस पे थोड़ा बहुत ही मतलब पे कर 2018 पे न्यू यह सोशल वेलफेयर तन पे आए मतलब बस गांध स्कूलस तन पे सफ़र पे कर गरा अकिस डिपार्टमेंटस में गरा बेस जाए मतलब सान बच्चन मुस्तकबिल गो खराब बुझ यह कम से कम 145 जनाब 10 out of blind 10 students are blind बाकी बच्चे डेफ एंड डम हैं बाकी बच्चे डेफ एंड डम है सर मसला ये है कि सर पहले यहाँ पे नॉर्मल बच्चे भी पढ़ते थे और ये बच्चे भी पढ़ते थे जब से सोशल वेलफेयर ने इसको टेक ओवर किया है उन्होंने
गसान तिम क्या वना उन्होंने टीचर्स को और उनको डिसोन किया है, नॉर्मल बच्चों को। दे टीचर्स आर क्वालिफाइड, लेकिन हमारे बच्चों के लिए नहीं है। वो नॉर्मल बच्चों के लिए ठीक टीचर्स हैं, वो वेल क्वालिफाइड है, लेकिन वी नीड स्पेशल एजुकेटर्स फॉर अवर चिल्ड्रन। मींस कि स्पेशल एजुकेटर्स ही नहीं थे। नो सर, मसला वही है। मसला वही है। हाँ सर, उनका अपना पे का मसला है, हमें उसके साथ कुछ नहीं है। वो उनकी अथॉरिटीज़ का मसला है, वो खुद ही निपटाएंगे कि उनका चलावा कुछ नोबडी, नो, देयर इज नो प्रिंसिपल इन द स्कूल। प्रिंसिपल के बगैर स्कूल चल रहा है। यहाँ पे कोई नहीं है, न सुबह असेंबली होती है, न जो स्कूल का निज़ाम होना चाहिए वो नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब है कि ये आप सभी पेरेंट्स को लाइए, उनकी कंसेंट पूछिए, आर दे सेटिस्फाइड, जो एजुकेशन यहाँ पे मिल रही है बच्चों को वो सेटिस्फाई है कि नहीं। मैं वन तो तुई कत पे कि क्या मसला छु तुय बासान आज? अस्सलाम वालेकुम। बस जो तहसील खड़ी डिस्ट्रिक्ट रामबन पे त्रे बच्ची डफ एंड डम, तो मैं इसीलिए वहाँ से आया था। हम डेरा वेरा आस पास में, हाँ डेरा यहीं पर है हमें लास्ट में, तो इन्हीं के लिए बच्चों के लिए आए थे हम। लेकिन इधर ये मसला है, हमें कम ही टाइम हो गया इधर। मसला ये है कि इनको तनख्वाह वनख्वाह नहीं है, तो इसलिए हमारी जो पढ़ाई है वो इससे जो है परेशान कुन हालात में पढ़ रहे हैं वो बच्चे, क्योंकि वो मुतमईन नहीं है खुद, क्योंकि इसलिए टीचर का बेहतर से ये पे होना, तनख्वाह होना, वो बच्चों के लिए अच्छा होता है और वो भी अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। इसलिए आपकी वसादत से हम गवर्नमेंट को यही अपील करते हैं कि इनको कम से कम इनका भी ख्याल रखें, क्योंकि इन्होंने कुछ ने 10 साल, कुछ ने 12 साल, कुछ ने 8 साल काम किया है, तो वो भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। और टीचर्स के साथ हमें कुछ नहीं है, लेकिन स्पेशल एजुकेटर जो हैं दे आर सेइंग रॉन्ग सर, दे आर सेइंग रॉन्ग। पेरेंट्स को अवेयरनेस है ही नहीं। इनको पता है कि हम बच्चों को लाते हैं, वहाँ पे बच्चा मैम पेज लिखती है कि ये फलानी, मैं अपनी बेटी का बोलूँगी, रोज़ उसको होती है उर्दू में एक चैप्टर। आप मेरी बच्ची को सामने लाइए, उसको उर्दू में से कुछ पूछिए, उसको कुछ पता नहीं होगा। ये वैली का पहला स्कूल है जहाँ पे साइन लैंग्वेज सिखाते हैं। हमें वही टीचर्स यहाँ पे रिपोर्ट कीजिए। हम गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त पे वो टीचर्स है ही नहीं सर, क्योंकि ये पहले नॉर्मल भी था और वो बच्चे भी पढ़ते थे, ये भी पढ़ते थे। कुपवार पे ये मसल कि आमद वनस गर बार त्रित खाम शुर मे टुवेन मे गर बस दिवान 6,000 रुपये डेर किराय, मगर गो आज मार्च पे सफल कर शुर टोटली इन पेज वन तुम दियो फीस तो पढ़नावक बच, तुम दियो फीस कहें तो पढ़नावक बच कहें तन। बह आयस योतर योर स्कूल निकस सो दोप मे दि फीस मे दित 600 रुपये, मगर बह द्रायस निमन इन अंडर मे कस मे दित पे पेरन फीस। वन दपान फीस दित कहें तन, ताकत फीस दनस यूत कहें तन, क्या पेवान 2 चूल पकन तत योर खाम शुर मे अकिस निकस कर्म काकलेर प्लान, मे तम 6,00,000 अन मशीन, बह दम फीस कि बह डेर किराय कि बह कर तमिस निकस बच्चे बाकी तो कड़क नबर इन पर्न कि गोड़ अनु तुम फीस पर्नो, तो अनु फीस कि पर्न कि तुम वन सान बच्चन क्या खता बिचारन, इन ये खता कि रबन सूद बिचार कल तो जड़। यह वन कर गवर्नमेंटस अपील कि कर सान बच्चन हूँ फैसल कर सोन फैसल। आमद वनस वोन तम दे दोप तुम यू रटू डेर, गोड़ रटू तुम डेर, पे त्रो तुम बच्चे योर रटन इन डेर न कर होकुन तुम वनस दर पदर 10 बज। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रॉब्लम्स इस स्कूल में बहुत ज़्यादा हैं, तो नाजरीन आपको बता दें कि ये स्कूल जो है ख़ासकर उन बच्चों के लिए बनाया गया था। मैंने पहले ही कहा कि जो बोल नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, और उन बच्चों के लिए स्कूल बनाने के बाद एक ट्रस्ट से टेक ओवर किया सरकार ने। देखिए, अगर सरकार ने टेक ओवर किया, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने टेक ओवर किया, तो खुदा के लिए मुझे बताएं क्या एक इस बस के लिए ड्राइवर जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जबकि हज़ारों की तादाद में अफसरान सरकारी ड्राइवर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या हमारी सरकार के पास एक ड्राइवर नहीं है? सवाल ये है, क्या इस सरकार के पास एक ड्राइवर नहीं है? इन बच्चों को वो घर से लाके स्कूल में कम से कम पढ़ाई के लिए लाता। दूसरी बात यह है, क्या हमारे इस खित्ते में डेफ एंड डम स्पेशल एजुकेटर्स नहीं हैं? सवाल यह भी है, जो इन बच्चों को, इन नन्हे मुन्ने बच्चों को कम से कम पढ़ाता। इस स्कूल में स्पेशल एजुकेटर की कमी है, जो पेरेंट्स ने हमें कहा। तो सवालात बहुत सारे हैं। अब जवाब जो है, हमने कोशिश की थी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर
उनसे बात करने की, हत्ता कि मेरी बात उनसे हुई तो उन्होंने कहा था कि आने वाले वक्त में वो चीफ सेक्रेटरी और बाकी जो अफसरान हैं वो एक मीटिंग के तहत इस स्कूल का मैनेजमेंट का हतमी जो इंतज़ाम है वो करने जा रहे हैं। लेकिन कब तक? खुदारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं, अगर आपके बच्चों का ऐसा हाल होगा, अगर आपके बच्चे ऐसे दरबदर होंगे तो क्या आप ये झेल सकते हैं? क्या आप इस पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं? अगर आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, अगर चीफ सेक्रेटरी स्टेट के कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई पे, तो ये रामबन का रहने वाला शख्स, श्रीनगर की ये खातून और कुपवारा से आए हुए ये उदास चेहरे, ठीक है, ये भी कंप्रोमाइज़ करेंगे। आज सोचना होगा, आज देखना होगा कि स्कूल का आखिरकार क्या होगा जहाँ पे बच्चे इस तरह से परेशान हैं, जिनको पढ़ाई मुतासिर हो रही है, जिनके वालिदैन परेशान है। मुशर्रफ वानी और ताहिर मोहिद्दीन के साथ मैं शाहिद इमरान, अभिनंदन होम से कश्मीर क्राउन के लिए। नाजरीन, इसी अभिनंदन होम का एक और बच्चा हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये बच्चा दरअसल जनूबी कश्मीर से है, यहीं पे रह रहा है, ये बोल सकता है लेकिन आँखों की बीनाई से महरूम है। जिगरा मे वन से नाव पनुन सुहेब अमीन। क्या मसला क्या पे तुम आज मजबूरन मीडिया बुलावन? ये मतलब सो अक किस्म फैसिलिटी कहें तक न पर्नावान न मतलब हॉस्टल फैसिलिटी, इसलिए ये वही करियो पान क्या मतलब ये तो मोल मोज योर तुम नजर वजर अहन मज मज कत्या बच्चे लगभग सारी स्कूल वकूल हेत हथ डोड़ तान तो तुम कूता टाइम गो ये 4 वरी तो थोड़ा तुम गाश थोड़ा अहन अकिस अच्छा तो बे क्या मुश्किलात ये न पर्नावान न कह मतलब तूत हिसाब मतलब कहें बस दपान पान मतलब बह नीर स्कूल मज मतलब ये इंसान ग वल्ला दरबदार खुदायस पे तो ये तम तूत मतलब शौक से अहन मतलब यह इंसान ग पथ दह खो दह ये मतलब तूत पर्नावान कहें, इसलिए तो कत क्लास 8th अवा कित पर्नावान क्या स्पेशली एजुकेटर कहें पर्नावान कहें बिल्कुल कहें खुदायस पे ये तरीक़ यह ब्लाइंड ब्लाइंडस पेवान पर्नाउन अमिस कह लफ्ज़ पान अगर अमिस आज वनो A B तो C यह कर मोबाइलस मज यह सेंट कल कर यह पानी जाए याद सुबह वन अमिस टीचर दपस यसा रात क्या पर्नोमक मे यह कर अमिस ना याद कोर्मुत दपस रात पर्नो A B C तो D कल आज दिस बदल सबक यह कर अत मज रिकॉर्डिंग बे कत मोबाइलस मज यह कर यम क्वेश्चन याद अमे तरीक़ पकान ब्रो ये वक्त वही पगह अमिस 8th 7th 6th यह एग्जाम अमिस गाइड सह पान हेकान यह लिखित कर कहें अमिस दिवान गाइड पत हसा आज पेपर ये मज मतलब आज उर्दू वन ये उर्दू सवाल 4 या 5 यमिस पेवान यह जवाब अमुक दिन मे क्या पोर्न बह सू जवाब दित इथे पे कह इंग्लिश कह मतलब मेसस बहुत वनकस जनाब सोरे कि इंचार्ज तो मेसस बहुत ये क्राफ्ट टीचर ये बहुत हेचनावान ऐ जानस खर नायलान कम हेचनावान बाकी बाकी तमन दोन तालीम बेहतरीन पे हारमोनियम बिल्कुल हारमोनियम बजावान मतलब सारे गामा राग देदार गना शामो मुरारी मतलब सारी अलाकार बिल्कुल टोटल नील तो ब्रेल सिस्टम ना साज मतलब हेचनावान टोटल कहीं ओतर तान हेचनावान हेचनावन कहें